یہودی حضرت امام علی ابن ابی طالب کی خدمت میں حاضر ہوا اور تکبرانہ انداز میں کہنے لگا کہ اے مسلمانوں کے خلیفہ، میں ایک یہودی ہوں اور میں نے یہ سنا ہے کہ اس زمین پہ سب سے زیادہ علم رکھنے والے آپ ہی ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے میرے اس سوال کا صحیح عقل مندانہ جواب دے دیا تو میں اپنے دین کو چھوڑ کر آپ کے نبی کے دین کو قبول کر لوں گا۔ تو حضرت امام علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، تم مجھ سے جو بھی سوال کرنا چاہتے ہو بے شک کرو۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے مسلمانوں کے خلیفہ، آپ مجھے ان لوگوں کے بارے میں بتائیں کہ جو لوگ 309 سال تک ایک ہی غار میں سوئے رہے اور 309 سال کے بعد اللہ نے انہیں نیند سے بیدار کیا، آپ مجھے ان لوگوں کے بارے میں بتائیں۔ تو حضرت امام علی ابن ابی طالب نے قرآن کی سورہ کہف کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ جب حضرت امام علی ابن ابی طالب نے سورہ کہف کی تلاوت کر لی تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے مسلمانوں کے خلیفہ، ہم نے آپ کا قرآن پڑھا ہے لیکن قرآن میں تو ان لوگوں کے بارے میں صرف تھوڑا سا ہی واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ کتنے تھے، ان لوگوں کے نام کیا کیا تھے، ان کے بادشاہ کا نام کیا تھا، ان کے کتے کا نام کیا تھا، جس شہر میں یہ رہتے تھے تو اس شہر کا نام کیا تھا، اور جس غار میں یہ سوئے رہے تو اس غار کا نام کیا تھا۔ آپ مجھے ان سب چیزوں کے بارے میں بھی بتائیں، میں بھی تو دیکھوں کہ آپ کتنے بڑے عالم ہیں۔ تو حضرت امام علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے کہ جس پروردگار نے مجھے زمین و آسمان کے علم سے نوازا۔ تو اصحاب کہف کے بارے میں جاننا چاہتا ہے نا؟ تو سن، آج سے کئی سو سال پہلے اللہ نے اپنے نبی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو یہ حکم دے کر زمین پہ بھیجا کہ اے میرے نبی، جاؤ زمین پہ اور زمین پہ جا کر لوگوں کو لا الہ الا اللہ انا عیسیٰ رسول اللہ کی دعوت دو۔ تو اس وقت اللہ کے نبی اللہ کے حکم سے کئی شہروں اور کئی علاقوں کا سفر طے کرنے کے بعد عام لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے، لیکن ہزاروں کوششوں کے باوجود بھی صرف چند گنے چنے لوگوں نے ہی اللہ کے نبی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے دین کو قبول کیا۔ تو جن لوگوں نے اللہ کے نبی کے دین کو قبول کیا تو اصحاب کہف بھی انہی چند گنے چنے لوگوں میں سے ہی کچھ لوگ تھے۔ اسی طرح جب اس وقت کے یہودیوں کے بڑے بڑے بادشاہوں نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگوں نے عیسیٰ ابن مریم کے دین کو قبول کر لیا ہے اور بہت سے لوگ عیسیٰ ابن مریم کے دین کو قبول کرنے والے ہیں، تو اس وقت یہودیوں کے بڑے بڑے بادشاہ یہ کہنے لگے کہ اگر آج ہم نے اس کے دین کی جڑوں کو نہ کاٹا اور اگر آج ہم نے کچھ نہ کیا تو بہت جلد اس کے دین کی جڑیں ہمارے ہی گھروں تک پہنچ جائیں گی۔ تو اسی وجہ سے اس وقت کے یہودی بادشاہوں نے اللہ کے نبی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، ادھر یہودیوں نے اللہ کے نبی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، اور ادھر اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کرنے کا ارادہ کیا، اور اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کرنے کے لیے انہیں زمین سے اٹھا کر اپنے پاس آسمانوں میں بلوا لیا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور اللہ کے نبی کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد یہودیوں کے بادشاہوں نے آپ کے چاہنے والوں پہ دن رات ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت کے لوگ آپ کے چاہنے والوں کو گھروں سے باہر نکال کر بے دردی سے قتل کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کچھ ہی عرصے کے بعد اس شہر کے ظالم بادشاہ کو اللہ نے موت دی اور وہ مر گیا۔ تو اس کے مرنے کے بعد وہاں کے لوگوں میں آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا اور وہ لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے۔ دوسری طرف جب ایران کے بادشاہ جس کا نام دقیانوس تھا، جب اس بادشاہ نے یہ دیکھا کہ سلطنت روم کے ایک شہر کا بادشاہ مر گیا ہے اور اس کے مرنے کی وجہ سے وہاں کے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے ہیں، تو دقیانوس بادشاہ نے موقع دیکھتے ہی 1,00,000 فوج کا لشکر تیار کیا اور اس شہر پہ حملہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ اسی طرح جب ایران کے بادشاہ دقیانوس نے اس شہر پہ حملہ کر کے اسے فتح کر لیا تو فتح کرنے کے بعد اس ظالم بادشاہ نے وہاں کی غریب عوام کے پیسے سے اپنے لیے ایک بہت بڑا محل بنوایا اور پھر اس محل میں ایک بہت بڑا دربار بنوایا اور پھر اس دربار میں اپنے لیے سونے کا ایک بہت بڑا تخت بنوایا۔ یہ ظالم بادشاہ اپنے محل میں سونے کے تخت پہ ہر وقت بیٹھ کر دنیا کی عیش و عشرت اور دنیا کی لذتوں میں ڈوبا رہتا تھا۔ اور اے بندہ خدا، اسی طرح کچھ ہی عرصے کے بعد اس ظالم بادشاہ نے اپنے دربار میں سے ہی اپنے 6 خاص لوگوں کو اپنا وزیر مقرر کر دیا۔ تو وہ شخص حضرت امام علی ابن ابی طالب سے پوچھنے لگا
कि आए मुसलमानों के खलीफा, इन 6 वजीरों के नाम क्या क्या थे और ये कौन थे? तो हजरत इमाम अली इब्ने अबी तालिब ने फरमाया कि ऐ बंदा खुदा, इन 6 वजीरों में से पहले का नाम मरनूस था, इसी तरह दूसरे का नाम दियरनूस, तीसरे का नाम शज़रियूस, चौथे का नाम तमलीहा, पांचवें का नाम मेशेलिना और छठे का नाम मैक्सिमिलियन था। और ऐ बंदा खुदा, दकियानुस बादशाह के ये 6 वजीर ही दर हकीकत असहाब कहफ में से ही 6 लोग थे। तो वो शख्स कहने लगा कि आए मुसलमानों के खलीफा, अगर ये वाकई ही ये सहाब कहफ में से ही 6 लोग थे और अगर ये उस वक्त के इतने बड़े बादशाह के वजीर भी थे, तो ये इतनी आलीशान जिंदगी को छोड़कर वहां से क्यों भागे? तो हजरत इमाम अली इब्ने अबी तालिब ने फरमाया कि ऐ बंदा खुदा, जब दकियानुस बादशाह ने ये देखा कि मेरे पास दुनिया जहां की दौलत है, हुकूमत है, फौज भी है, तो वो अपने आप को खुदा मानने लगा और उसने अपनी खुदाई का ऐलान करने के लिए अपने सारे खानदान के लोगों को इकट्ठा किया। और सारे खानदान के लोगों को इकट्ठा करने के बाद इन्हें जोर जोर से कहने लगा कि आए मेरी सल्तनत के लोगों, आज के बाद मैं ही तुम्हारा खुदा हूँ। आज के बाद मैं जो कहूँगा वही तुम्हारी किताब है, मैं जो बोलूंगा वही तुम्हारा दीन है, और जो मुझे खुदा मानेगा तो उसके लिए बादशाही है, शहनशाही है और दुनिया जहां की दौलतें हैं, और जो मुझे खुदा मानने से इनकार करेगा तो उसके लिए तड़पा देने वाली दर्दनाक मौत है। इसी तरह जब दकियानुस बादशाह के एक वजीर मैक्सिमिलियन को इस बात का इल्म हुआ कि हमारे बादशाह दकियानुस ने अपने खुदा होने का ऐलान कर दिया है, और ऐलान करने के बाद अब दकियानुस बादशाह हम सब वजीरों से भी अपने खुदा होने की गवाही लेना चाहता है, तो मैक्सिमिलियन के जो दिल से अल्लाह के नबी ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी मानता था, तो मैक्सिमिलियन ने दकियानुस बादशाह के दूसरे सब वजीरों को भी इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद इन्हें निहायत ही अदब और एहतराम से कहने लगा कि ऐ मेरे भाइयों, हम सब एक दूसरे की सच्चाई को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हमने जो सच्चाई कई सालों से अपने दिलों में छुपा रखी है, तो वो सच्चाई हम 6 लोगों के अलावा और कोई भी नहीं जानता। ऐ मेरे भाइयों, तुम सब भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि हम सब उन्हीं चंद गिने चुने लोगों में से एक हैं कि जिन लोगों ने अल्लाह के नबी को अल्लाह की तौहीद की गवाही दी थी। लेकिन अब ये जालिम बादशाह हम सब वजीरों से अपने खुदा होने की गवाही लेना चाहता है। ऐ मेरे भाइयों, मैं कभी भी अपने उस रहमान रब, रहीम रब, अपने उस करीम रब की पाक जात में किसी को भी शरीक नहीं करूंगा। वो मेरा परवरदिगार ही है कि जो तमाम जमीन व आसमान का हालिक व मालिक और राज़िक है, और तमाम जमीन व आसमान में रहने वाली तमाम मखलूकात का भी हालिक व मालिक और राज़िक है। ये जालिम बादशाह अपने आप को खुदा कहता है, दर हकीकत तो ये इंसान तक नहीं। ऐ मेरे भाइयों, इससे पहले कि दकियानुस बादशाह हम सब वजीरों से अपने खुदा होने की गवाही ले, हमें अपने ईमान को बचाने के लिए यहाँ से भाग जाना चाहिए। व्यूअर्स, यहाँ पर ये बात याद रहे कि असहाबे कहफ दकियानुस बादशाह के वजीरों में से ही 6 खास वजीर थे, और इनमें से जो मैक्सिमिलियन था तो वो ना सिर्फ दकियानुस बादशाह का वजीर था बल्कि दकियानुस बादशाह की बेटी का शोहर भी था। और यहाँ पर यह बात भी याद रहे कि वो मैक्सिमिलियन ही था कि जिसने अपने बाकी सभी दोस्तों के ईमान को जगाया, और ईमान को जगाने के बाद उन्हें अल्लाह से उम्मीद रखने की दावत दी। तो इसी तरह मैक्सिमिलियन की इस बात करने के अगले ही दिन दकियानुस बादशाह के ये 6 वजीर इकट्ठे हुए, और इकट्ठा होने के बाद ये सब अपने उस शहर को छोड़कर वहां से भाग गए। अभी ये अपने उस शहर को छोड़कर वहां से भाग ही रहे थे कि अचानक रास्ते में इनकी मुलाकात एक बकरियां चराने वाले से हुई। तो वो बकरियां चराने वाला इनसे पूछने लगा कि अल्लाह के बंदो, देखने में तो तुम शाही खानदान के लोग लगते हो, लेकिन ये तुम यहाँ अकेले इस हालत में क्या कर रहे हो? तो दकियानुस बादशाह के वजीरों ने कहा कि अल्लाह के बंदे, हाँ, हम शाही खानदान के ही लोग हैं, लेकिन हम अपने उस शहर को छोड़कर वहां से भाग गए हैं। तो बकरियां चराने वाला इन 6 वजीरों से पूछने लगा कि अल्लाह के बंदो, तुम शाही खानदान के लोग हो और अपने ही शहर को छोड़कर वहां से भाग गए, लेकिन वो क्यों? तो इसी तरह दकियानुस बादशाह के इन 6 वजीरों ने उस बकरियां चराने वाले को अपनी सारी हकीकत बता दी कि ऐ बंदाए खुदा, हम अल्लाह के नबी ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के चाहने वालों में से हैं, बस इसी वजह से हम अपने उस शहर को छोड़कर वहां से भाग गए हैं।
तो जैसे ही इन लोगों ने उस बकरियां चराने वाले को अपनी सारी हकीकत बताई, तो उस बकरियां चराने वाले के दिल में भी अल्लाह के नबी ईसा मसीह अलैहिस्सलाम की मोहब्बत फिर से ताजा हो गई। और वो बकरियां चराने वाला इन 6 वजीरों से रो रो कर कहने लगा कि अल्लाह के नेक बंदो, मैं भी अल्लाह के नबी ईसा मसीह अलैहिस्सलाम के चाहने वालों में से एक चाहने वाला हूँ। मैं भी भटके हुए बंदों में से एक भटका हुआ बंदा हूँ। अल्लाह के नेक बंदो, खुदा के लिए मुझे भी अपने साथ ले चलो, ताकि मैं कयामत के दिन अपने रब के सामने, अपने नबी के सामने अपना मुंह दिखाने के काबिल तो रहूं। अल्लाह के बंदो, खुदा के लिए मुझे भी अपने साथ ले चलो। तो ये 6 वजीर उस बकरियां चराने वाले से कहने लगे कि ऐ हमारे भाई, घबराओ नहीं, हम जानते हैं कि तुम भी हमारी तरह अल्लाह के नबी से मोहब्बत रखते हो, तुम हमारे साथ चल सकते हो, लेकिन तुम ऐसा करो, तुम अपने इस कुत्ते को यहाँ से भगा दो, कहीं ये भौंक कर हम सबको पकड़वा ना दे। तो वो बकरियां चराने वाला अपने कुत्ते को पत्थर मारकर वहां से भगाने ही लगा था कि अल्लाह ने उस कुत्ते को बोलने की सलाहियत दी, और वो कुत्ता कहने लगा कि अल्लाह के नेक बंदो, मुझे मारो मत, मैं तुम्हारे दुश्मनों से तुम्हारी हिफाजत करूंगा। अल्लाह ने मुझे तुम्हारी हिफाजत के लिए चुन लिया है। जैसे ही असहाबे कहफ ने उस कुत्ते को बोलते हुए सुना, तो असहाबे कहफ अल्लाह के इस मोजा को देखकर हैरान रह गए। और इसी तरह ये बकरियां चराने वाला भी असहाबे कहफ के साथ मिलकर असहाबे कहफ का ही हिस्सा बन गया, और उस बकरियां चराने वाले का कुत्ता असहाबे कहफ का कुत्ता बन गया। इसी तरह इसके बाद असहाबे कहफ अल्लाह की इबादत करने के लिए एक बहुत बड़े पहाड़ की एक बहुत बड़ी गार में जाकर बैठ गए, और रो रो कर अल्लाह से ये दुआएं मांगने लगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हम तेरे लाचार बेबस बंदे, तू हमारा रहमान रब, रहीम रब, करीम रब। ऐ हमारे परवरदिगार, बेशक तू ही सबसे बेहतरीन मददगार है। हम तेरे ही सहारे पे अपना घर बार, अपना सब कुछ छोड़कर अपने ईमान को बचाने के लिए वहां से भाग गए हैं। ऐ हमारे परवरदिगार, तेरे सिवा हमारे ईमान को बचाने वाला और कौन है? ऐ हमारे मालिक, हमारी मदद कर। इसी तरह असहाबे कहफ अल्लाह से रो रो कर दुआएं मांग कर उसी ही गार में सो गए। और दूसरी तरफ अल्लाह ने मलकुल मौत को यह हुक्म दिया कि आए मलकुल मौत, जा जमीन पे, और जमीन पे जाकर मेरे इन नेक लोगों की रूहों को कब्ज कर। जब मलकुल मौत ने असहाबे कहफ की रूहों को कब्ज कर लिया, तो फिर अल्लाह ने अपने फरिश्तों को भी यह हुक्म दिया कि आए फरिश्तों, मैंने मुकर्रर किया तुम्हें अपने इन नेक लोगों की हिफाजत के लिए, जाओ जमीन पे, और जमीन पे जाकर मेरे इन नेक लोगों की हिफाजत के लिए मुकर्रर हो जाओ। इसी तरह मलकुल मौत ने अल्लाह के हुक्म से असहाबे कहफ की रूहों को कब्ज किया, और हजारों फरिश्ते असहाबे कहफ के बेजान जिस्मों की हिफाजत के लिए मुकर्रर कर दिए गए। इसी तरह वक्त गुजरता रहा, और असहाबे कहफ उसी गार में ही अल्लाह के हुक्म से सोए रहे। असहाबे कहफ के उसी गार में सोए रहने के कुछ ही दिन बाद जब दकियानुस बादशाह को इस बात का इल्म हुआ कि मेरे वजीरों ने मुझे धोखा दिया है और मेरी खुदाई का इनकार किया है, तो दकियानुस बादशाह ने 80,000 फौज का लश्कर तैयार किया, और कई दिनों की तलाश के बाद और हजारों कोशिशें करने के बाद दकियानुस बादशाह अपनी फौज को लेकर उसी पहाड़ पे जा पहुंचा कि जिस पहाड़ की एक गार में असहाबे कहफ सोए हुए थे। दकियानुस बादशाह ने पहाड़ पे पहुंचते ही अपनी फौज को यह हुक्म दिया कि जाओ और जाकर मेरे इन गद्दार वजीरों को ढूंढो, और ढूंढने के बाद इन्हें इबरतनाक मौत दो। इसी तरह इसके बाद दकियानुस बादशाह की फौज ने उसी पहाड़ पे असहाबे कहफ को ढूंढना शुरू कर दिया, और कुछ ही देर के बाद दकियानुस बादशाह की फौज इसी पहाड़ की उस गार में जा पहुंची कि जिस गार में असहाबे कहफ सोए हुए थे। जब दकियानुस बादशाह को इस बात का इल्म हुआ कि मेरे वजीर इसी पहाड़ की एक गार में सोए हुए हैं, तो दकियानुस बादशाह ने अपनी सारी फौज को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद इन्हें जोर जोर से कहने लगा कि आए मेरे सिपाहियों, आज मैं इन गद्दार वजीरों को ऐसी इबरतनाक मौत दूंगा कि जिस मौत के बाद हर कोई मुझे खुदा मानेगा, और अगर आज के बाद किसी ने भी मुझे खुदा मानने से इनकार किया तो उसे भी मैं वही दर्दनाक मौत दूंगा कि जो मौत मैं इन गद्दार वजीरों को देने जा रहा हूँ। ऐ सिपाहियों, जाओ और जाकर इन गद्दार वजीरों की गार के आगे एक दीवार बनाओ, ताकि ये गद्दार इसी गार में तड़प तड़प कर जिंदा